Yeah. Hello, Sumit. How are you? I'm good, ma'am. How are you? Yeah, good. Sumit, first of all, congratulations Thank you, ma'am. for the memes. Yes. Sumit, please give me a brief introduction of yourself. Ma'am, my name is Sumit Kumar Singh. I belongs to Gorakhpur. I have completed my initial studies from Gorakhpur. Then I did my BTech in Computer Science Engineering from Galgotias College. Then I started Okay. preparing. Yes, ma'am. All right. Okay, Sumit. And this is your first interview? Yes, ma'am. First interview. Okay. And when is the interview scheduled? It's on 4th of Feb. 4th Feb. So pretty close now. Okay. Yes, ma'am. All right, Sumit. Have you given any mocks so far? Yes, ma'am. I've given 3 marks. Okay. So please tell me, based on your experience of the mock, where do you think you need to work, or how is the basic experience? And if you want me to focus on certain things, please tell me. Yes, ma'am. So 2 out of 3 marks were good. Uh, Okay. the communication style, articulation, etc. were good. Personality, the feedback was good. So, and the Okay. common feedback that I was getting is like I have to work on current affairs. So I am currently Okay. doing. Yes, ma'am. That can be done. Okay. Hello. Hello. Yes. Yes, I'm ma'am. saying that can be done because प्रॉब्लम तब होती है ना जब बेसिक्स कम्युनिकेशन, जिन लोगों का कम्युनिकेशन खराब है या आर्टिकुलेशन में इश्यूज है उनको दिक्कत होती है. इफ इट्स जस्ट अबाउट करंट अफेयर्स और कंटेंट तो वो हो जाता है, उसका कुछ इशू नहीं होगा. ओके. जी जी Also, Sumit, one advice I'll give you: when if you appear for the interview and the panel members ask you कि how Sumit, how are you? You just have to say, I'm fine, sir. yes ma'am. Thank you. You do not have to ask them again, sir, how are you? Okay. Yes ma'am. Yeah. So, Sumit, I'll give you a basic overview of the interview process. How is the interview and what are the expectations? And then we'll discuss your DAF. And after we'll Okay. explore what all entries are there and how can the questions be asked. And after that, then if you have any doubts, please do ask me. Okay. All right, ma'am. Okay. So, Sumit, when we talk about the UPSC interview, it's basically called personality test. And exactly that is their objective, to test your personality, to check what kind of person you are, what values you carry, how you talk to other people, in terms of, are you humble, are you respectful? If they give their opinion on something, do you respectfully accept it, or you are arrogant? So ये सब देखा जाता है. Also, they ask certain questions to check what kind of officer you will become. Are you a solution-oriented person, or you have some very strong opinions about something? ये सब check किया जाता है. तो that should be always in your mind कि अगर knowledge के या content के part में थोड़ी कमी रह रही है, they are okay with it. But they really want you to be a very fine person. Okay, personality wise. So then that Yes ma'am. comes, वहां पे आता है आपका communication, the way अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, all of that. Okay. So when Yes ma'am. we see your DAP, the first thing is your name, Sumit. So someone might get interested to know कि, what does Sumit means, the literal meaning of the name, and what does it personally mean for you. आपके लिए उस वर्ड सुमित का सिग्निफिकेंस क्या है, जो भी उससे मीनिंग निकलता है उसका. डज योर पर्सनैलिटी रिलेट टू द मीनिंग? ओके. आफ्टर दैट, टू वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स: योर बर्थ डेट एंड द डेट ऑफ योर इंटरव्यू. उस दिन अगर कुछ कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है हिस्टोरिकली, और तभी कुछ आपके बर्थ डेट के दिन किसी और सिग्निफिकेंट फिगर का बर्थडे है तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा. ओके. देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, योर होम डिस्ट्रिक्ट एंड योर होम स्टेट. तो दे माइट आस्क यू अबाउट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ गोरखपुर. हिस्ट्री में जो Hmm. कुछ हुआ है, जैसे गोरखपुर का इवोल्यूशन होता है ना एक सिटी का, टू मतलब हिस्टोरिकल टाइम से अब तक का, तो दे माइट आस्क यू दैट. देन गोरखपुर को गोरखपुर क्यों कहा जाता है. देन गोरखपुर का जो प्रेजेंट कंडीशन है, डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस हो या कुछ टूरिज्म के लिए कुछ है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए. गोरखपुर के इश्यूज क्या है, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चरल, दैट यू शुड बी नोइंग. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन देयर, लिटरेसी, या फिर जेंडर रेशो, द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज है,
ये सारी चीजें, इफ देर आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया अगर कोई है वहां पे, तो ये सब के बारे में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूपी के बारे में भी, सॉरी, गोरखपुर का जो cultural aspects है, the cuisine of that area, any local cuisine, local handicraft, textile, so बहुत अच्छे से करिएगा। देन उत्तर जी। प्रदेश के बारे में ऑन सिमिलर लाइंस, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट डिफरेंट इश्यूज गोइंग ऑन इन उत्तर प्रदेश। अब कुंभ चल रहा है, तो आपके इंटरव्यू के वक्त भी वो न्यूज में तो रहेगा ही, तो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट कुंभ। कुंभ कहाँ हम्म, कहाँ होता है, कितने साल बाद होता है, कुंभ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों सेलिब्रेट होता है, कितने लोग आए हैं इस बार, कितने एक्सपेक्टेड है, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। ऑल्सो फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, कि आप वहां अगर एज एन ऑफिसर पोस्टेड होते तो आप किन चीजों का ख्याल रखते, या चीजें कैसे हैंडल करते, क्राउड मैनेजमेंट, उसके हम्म, प्रिंसिपल्स, वो सब अच्छे से कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंटल डेफिसिट है, उसके रीजंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, शुड यूपी बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट स्टेट्स, ऐसे भी पूछ सकते हैं। या फिर यूपी के हम्म, बारे में, जो नए कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रहे हैं यूपी में, तो उनका क्या हम्म, इफेक्ट है, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, देन बुलडोजर जस्टिस का प्रॉब्लम, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ओके, तो So I'm writing these things. East versus West UP, and सुमित, uh, यू कैन इवन गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, सो आप उसमें से oh, कर लीजिएगा, oh, ठीक okay, है। okay, okay, okay. या आफ्टर दैट, यस, सो योर फादर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, सो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, द प्रॉब्लम्स इन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, लेबर लॉज क्या है, लेबर कोड्स क्या है, इश्यूज क्या है, Hmm. सोशल सिक्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, सो दीज थिंग्स बी प्रिपेयर्ड। देन आपने की है इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में, सो देखिए, कंप्यूटर साइंस के टेक्निकलिटीज पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट यू कैन बी आस्क्ड अबाउट उस फील्ड में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। Hmm. जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन और टू सॉल्व सोशल इश्यूज, वो पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बिग डेटा, और डेटा थेफ्ट के बारे में, ये सारी टर्म्स अच्छे से कर लीजिएगा। और मोस्टली टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो कुछ भी न्यूज में चल रहा है वो बहुत, क्योंकि एवरीडे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, अभी रिसेंटली एक भारत पोल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ऐसी चीजें जो न्यूज में Hmm. है, बी अवेयर ऑफ इट। देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी आई मेंशन, सो यू कैन बी आस्क कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है, वो बताइए। ओके, Okay. देन you're working as SME come faculty. What does it mean, SME? Yeah, it is like subject matter expert Okay, so you're a in a coaching. faculty. Like, do you teach? Yes, ma'am. So you can be asked about your company, the organization you are working in. उसके बारे में बेसिक पूछ सकते हैं, otherwise they won't also. Also, they'll ask you कि why do you want to become a civil servant? So you should have a very genuine answer prepared around it. Okay. ठीक है मैम। Then you can be asked, if you become an IAS, so which are the issues you want to focus in, which are the areas you would like to work in. अगर आप गोरखपुर में डीएम हो तो कौन से मुद्दों पे काम करना चाहोगे, they can ask this. Okay. Then awarded best speaker in the Indian oil extempore competition on the topic integrity a way of life. तो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि what do you mean by integrity, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन इंटीग्रिटी बिकम अ वे ऑफ लाइफ, ऑल्सो दे विल गिव यू सम ट्रिकी सिचुएशंस जहां पे आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट हम्म, मोरालिटी, दैट इज इंटेग्रिटी, हमेशा रखनी है, बट प्रैक्टिकलिटी भी साथ में रखनी है। बहुत आइडियल ठीक। ओपिनियंस नहीं देने हैं किसी, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, बट देन अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करते हुए। ओके, फिर इंटेग्रिटी की एग्जांपल्स बोल सकते हैं कि गिव अस फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पे एक सिविल सर्वेंट को इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए। ओके, देन Yes, ma'am. रनर अप एट द यूनिवर्सिटी लेवल इन द टेक टू हैंडल the tech to handle COVID contest for my project COVID-19 diagnosis using machine learning. So see,
सुमित, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जब भी इन एंट्रीज पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, यू जस्ट ट्राई टू बिल्ड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद देम ओवर दिस. ओके, आपका इंटरव्यू यहाँ पे ज्यादा ले जाइए. दे शुड स्पेंड मोर टाइम विद दीज एंट्रीज सो दैट अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस कम हो जाएंगे. ओके, सो देन दे आस्क यू कि व्हाट वाज दिस प्रोजेक्ट अबाउट, इसके पूरे डिटेल्स. सो कोविड-19 डायग्नोसिस यूजिंग मशीन मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है. देन कोविड-19 डायग्नोसिस मशीन लर्निंग से कैसे हो सकता है, उसका फिर आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. And फिर how can जी technology be used to solve various such issues, in health, or for education, or maybe road safety. कोई भी आपको एक इशू दे देंगे, उसमें टेक्नोलॉजी या मशीन लर्निंग जो भी है वो कैसे यूज करेंगे. ऑल्सो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज के चैलेंजेस क्या है, कॉस्ट, मतलब किन एस्पेक्ट्स में कॉस्ट है उनकी, दैट कैन बी आस्क्ड. देन यू हैव रिटन कराटे, तो फिर कराटे के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए. द टेक्निकल एस्पेक्ट, द टर्मिनोलॉजीज, वेरियस बेल्ट्स, कब दिए जाते हैं, कितना ट्रेनिंग होता है, ऑल ऑफ दैट. देन कराटे का इंडिया में स्टेटस कैसा है, एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो होती है इंडिया में, इंडिया का पार्टिसिपेशन कैसा है, कराटे एज अ स्पोर्ट, एंड ऑल्सो कराटे एज अ self defense technique. I'm sorry, I got stuck there. Yes, self defense yes ma'am. technique. So how can karate also, karate is taught at lot of places for to women specially, for self defense. So उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है. तो जब ऐसे इन चीजों पे डिस्कशन हो रहा है ना, तो जस्ट शो अ बिट ऑफ इंटरेस्ट. आपका आंसर ड्राई नहीं लगना चाहिए. इट शुड लुक लाइक यू आर इंटरेस्टेड टू टेल देम more and more Hmm. about your DAF. Okay. Then President of Literary Society of Galgotias College of Engineering Tech. So you can be asked, Literary Society का काम क्या है? Then what do you mean by literature? What can we do to promote our literature? What is government doing to preserve and promote ancient literature? Okay, what was your role? What did you do? तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं. Then, Joint Secretary of Student Council in college, responsible for organizing events and annual fest. So, आप responsible थे, मतलब आपका exactly role क्या था, आप क्या क्या करते थे, ये कौन से इवेंट्स होते थे, मतलब किस टाइप के इवेंट्स होते थे, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, मैनेजमेंट का रोल कैसा होता था, आप वहाँ आपके वहां से लर्निंग्स क्या थे, हाउ विल यू अप्लाई दोज लर्निंग्स व्हेन यू आर एन ऑफिसर, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. Organized and led multiple oral health camps in rural areas. सो यहाँ पूछ सकते हैं कि आपने किसके थ्रू किया, कॉलेज के थ्रू किया या किसी एनजीओ के थ्रू किया. व्हाई ओनली रूरल हेल्थ, सॉरी, ओरल हेल्थ कैंप्स, क्योंकि ओरल हेल्थ कैंप स्पेसिफिक हो गया बहुत. तो फिर वो आप Hmm. कैसे अरेंज करते थे, कौन से, लाइक विच आर दिस रूरल एरियाज, कौन से गांव थे, आपको गांव के नाम बताना पड़ेगा, कितने लोग आए, बहुत डिटेल में पूछेंगे बिकॉज दे वांट टू चेक कि आपने एक्चुअली किया है या नहीं. देन इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ. ऑल्सो दे लास्ट यू कि सुमित, इफ आई वांट टू टेक केयर ऑफ माई ओरल हेल्थ, व्हाट मेजर शुड आई टेक. ओके, ऐसे भी पूछ सकते हैं. Then basic level Java programming for recreation and fun coding exercises. So इसके बारे में if someone is from that background, they'll ask you technical questions. Otherwise, they'll ask you कि आपको like programming and coding तो hobby नहीं होती है generally. So like what do you do? What do you make programs for? And why don't you try do it professionally and try to earn money out of it? ऐसे पूछ सकते हैं. फिर fun coding exercises क्या होते हैं? What are the outcomes? What exact programs do you code for, basics पूछेंगे जो जो anyway बता पाओगे. Writing and reciting Hindi poetry, this is very interesting. So they'll ask you to recite a poetry maybe कि आपकी लिखी हुई कोई poetry recite कीजिए. Then they'll ask you what are the basic principles of poetry. Who is your favorite Hindi poet? या फिर किसी और की poetry सुनाइए, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं. Then watching stand-up comedy, so then they'll ask you कि why do you like to watch stand-up comedy? What is the what is the importance of humor in handling different issues maybe. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं. ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके जो कोविड वाली एंट्री है उस पे, एंड इंटेग्रिटी वाले पे, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. बाकी तो मे बी वन और टू क्वेश्चंस दे लास्ट, नथिंग मोर देन दैट. Yes ma'am. After that, they might ask you
like they might not necessarily, but they might ask you कि why is police service your sixth preference? हम्म, Usually people put it at second, so you if आपका जो भी रीजन है बहुत ऑनेस्टली आप उन्हें बता सकते हैं, they won't mind it. ठीक ठीक है। Okay. So Sumit, this was by and large your DAF. Apart from this, if you have any doubt, please ask me. मैम आई थिंक कि जो प्राइजेस मेडल्स और इंटरेस्ट हॉबी वाला सेक्शन है थोड़ा हैवी हो गया है क्या, मतलब इसमें बहुत No, इंटेंस हो गया no, है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे एकदम हैवी से नहीं हुआ फील है। मिला कि ज्यादा हो गया है। नहीं, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, इफ आई सी दैट सम डैफ्स आर बस जो ना बहुत कम लिखा होता है ना, वो ऐसे लगता है बस लिखने के लिए कुछ तो लिख दिया है। अब आपकी जो एंट्रीज है वो सारी बहुत जेन्युइन लग रही है, ऐसे कुछ नहीं लिखा है कि बस लिखने के लिए लिखा है, तो इट्स नॉट। सी इट कैन लुक हेवी टू अ लॉट ऑफ पीपल, आपको बोला भी होगा लोगों ने, बट ट्रस्ट मी इट डजंट मैटर। हम्म, इनफैक्ट इट, अगर आप उन पे अच्छे से बात कर पाते हो ना, तो इट विल एड टू योर हम्म, एडवांटेज। ऑल्सो हम्म, इससे होगा ये ना कि आपका इंटरव्यू ज्यादा तो आपके डैफ बेस्ड रहेगा। ओके, डैफ के बाहर कम जाएगा। हाँ, जब एंट्रीज कम होती है, देन दे आस्क फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड सम सिचुएशंस एंड ऑल ऑफ दैट। इसीलिए मैंने स्पेसिफिक्स लिखे हैं, जो मैंने करा एग्जैक्टली वो स्पेसिफिसिटी में गया हूँ मैं, ताकि वहां पे बात हो, हम्म। ज्यादा रैंडम हाँ ना हाँ, हो। इट्स ओके, या इट्स ओके। ओके। और एंड मैम इसमें मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस जनरेट करने होंगे मुझे, ये अपने एंट्री से, तो उसके जी लिए जी मैं जी। मतलब कैसे सी खुद ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चंस कर रहा कैसे, हूँ। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, वो आपको एक बेसिक पूछेंगे, ओके, कि मशीन लर्निंग का कोविड डायग्नोसिस में क्या एप्लीकेशन है। आप जो आंसर दोगे उस पे फॉलो अप क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप प्रिपेयर भी हम्म, कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अब मैंने ये बोल दिया, मैं ये आंसर दूंगा इसका, अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, ऐसे प्रिपेयर करो। और वो ज्यादा नहीं पूछते, वो हार्डली 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं एक टॉपिक पे, देन दे हम्म, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके। और मैम करंट अफेयर्स, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी है, तो अच्छा, हिंदी है तो यू शुड हैव टोल्ड मी, हाँ, आई कुड हैव एक्सप्लेन यू इन हिंदी नहीं आल्सो। कोई बात नहीं मैम, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो ओके। लेकिन मैं न्यूज़पेपर कोई हिंदी का नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज नॉट फाइंडिंग एनी न्यूज़पेपर गुड इन हिंदी। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ रहा हूँ, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर लेता सी हूँ ठीक से हिंदी में। अगर आपको समझ रहा है और वो आप न्यूज, अब इंग्लिश में पढ़ी हुई न्यूज को आप हिंदी में एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इट्स ओके। ओके मैम। ऑल्सो और कुछ मैम न्यूज चैनल्स भी देखते रहिए, जैसे कि जो एजुकेशनल न्यूज चैनल्स होते हैं वो देखते रहिए, तो उससे आप थोड़ा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में भी हेल्प हो जाएगी। ओके मैम, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो क्या ओके। मतलब मुझे नहीं लगता कि पैनल में कोई एक्सपर्ट बैठा हो सकता है हिंदी लिटरेचर का। नहीं, लेकिन तो लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए ऑप्शनल। इट कैन, यू कैन नेवर से कि कोई नहीं होगा, कोई हो सकता है, क्योंकि पता है वहां पे कुछ प्रोफेसर्स भी बैठे होते हैं हाँ, फ्रॉम some universities, so they might ask you, या फिर those are people who are having 30-35 years of experience in the service, so they might ask you questions over हिंदी लिटरेचर, बिकॉज किसी की हॉबी हो सकती है हिंदी लिटरेचर पढ़ना, तो उस पर प्लीज प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बेसिक्स, मैम, नॉट मैं बहुत कर रहा हूँ, डिटेल में, लेकिन बेसिक्स जी। कर रहा हूँ। मैम मैं कीवर्ड्स, जैसा आपने बताया डैक में जो कीवर्ड है, मैं हर कीवर्ड पे नोट्स बना रहा हूँ, और उस पे उस नोट्स में उसको फिर रिवाइज भी कर रहा हूँ। तो यही मेथड आई थिंक कि ठीक है प्रिपेयर करने के लिए। यस क्वेश्चन यस जनरेट करके खुद से नोट्स बना ले रहा हूँ। और करंट अफेयर यस के यस। लिए एक न्यूज़पेपर और कोचिंग की कंपाइलेशन आ रही है, वो पढ़ रहा हूँ, जिसमें इशूज हैं जो सारे करंट में चल रहे हैं। ठीक है। कंपाइलेशन मतलब मंथली मैगजीन्स मत पढ़िए, अगर नहीं वो इंटरव्यू नहीं पढ़ रहा हूँ। स्पेसिफिक कंपाइलेशन है तो हाँ, फिर वो पढ़ लीजिए। जी हाँ इंटरव्यू स्पेसिफिक है। जी। ओके मैम, तो इट वाज अ हेल्पफुल सेशन। ओके ओके, ऑल द बेस्ट सुमित।